बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की परम वंदनीय परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय। तेरे चरणों में नमन हमारा, दिया तूने है हमको सहारा। तेरे चरणों में नमन हमारा, दिया तूने है हमको सहारा। तेरे चरणों में नमन हमारा, दिया तूने है हमको सहारा। हमको रख लेना चरनी लगा के, हमको रख लेना चरनी लगा के। धूल चरणों की अपनी बना के, धूल चरणों की अपनी बना के। हमको रख लेना चरनी लगा के, धूल चरणों की अपनी बना के। तेरा सृष्टि में सगल पसारा, दिया तूने है हमको सहारा। तेरे चरणों में नमन हमारा, दिया तूने है हमको सहारा। तेरे मार्ग पर बढ़ते ही जाएं, तेरे मार्ग पर बढ़ते ही जाएं। फूल श्रद्धा के चरनी चढ़ाएं, फूल श्रद्धा के चरनी चढ़ाएं। तेरे मार्ग पर बढ़ते ही जाएं, फूल श्रद्धा के चरनी चढ़ाएं। मिले चरणों का हमको नजारा, दिया तूने है हमको सहारा। तेरे चरणों में नमन हमारा, दिया तूने है हमको सहारा।
कभी ना भुलाए, तेरी चर्चा ही सबको सुनाए, तेरी चर्चा ही सबको सुनाए, तेरा प्यार कभी ना भुलाए, तेरी चर्चा ही सबको सुनाए, मिले चरणों का, मिले चरणों का हमको नजारा, दिया तूने है हमको सहारा. Generation also. So what was done? What was the good deed done over here? Few elderly people, retired elder people, got together and they decided to clean that plant. Cleaning that plant meant death because of those radiations, life-threatening. So during the interview, before they took that step, there was an interview done and a question was asked to them. Why are you doing all this? At that time, those elder people said, that's the one good point, one good deed, what they said. We have lived our lives, but we want to secure our tomorrow, our today, our future generation. That's why we are taking this step. Brothers and sisters, that good step help the coming generation. One good step. Another example, a Canadian woman, Lauren Secours. I think it's back in the 18s. There was a war between America and Canada. Lauren somehow overheard the Americans' plans of war, because suddenly they changed their plans. She overheard all those tricks, and with courage, with determination, full strength, it is said that she walked for 30 kilometers through all those narrow roads, tough, rough roads, jungle, everything, to give the information to the British troop that the Americans have changed their war plan. Because of her courage, her determination, her one good deed, the British troops were also able to change the plans and after the end they won the war. One good deed. So dear devotees of Shri Ashutosh Maharaj Ji, Guru Maharaj Ji is also expecting one good deed from us. और गुरु महाराज जी के लिए वो क्या है? स्वयं के जीवन का कल्याण कर लेना. खुद का करेंगे तो दूसरों का कर पाएंगे. खुद सत्संग में आएंगे, खुद सेवा करेंगे, खुद साधना करेंगे, then only we can motivate others. Sway Adhyay. Because the change always begins from our own house. यही हम बोलते हैं ना, अपने घर से शुरुआत होती है. Not a house of bricks. इस मानव तन को हाउस कहा गया है. From this house the change begins. This is what Guru Maharaj Ji is expecting from all his disciples. कि आप कहीं अपने जीवन में वो एक गलती ना कर देना कि at the end of the day आपसे पूछा जाए, do you know how to swim? और आप भी बोल दो, no, we do not know how to swim. Maharaj Ji wants us to give the answer, yes, we know how to swim. कैसे इस जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्त होना है.
For this, as usual, as regular, as we always say, all we have to do is follow the instructions given by Guru Maharaj Ji. Regular satsang, seva, meditation. From meditation, I just wanted to share the sister's experience today. She's told in Hindi. Maybe some people, some devotees didn't understand because who know English only. So, how important meditation is, Guru Maharaj Ji saying. अक्सर आप लोग सुनते हो कि सत्संग में गुरु महाराज जी का निवास होता है, तो मे बी समवेयर इन आवर माइंड्स, इन सम कॉर्नर ऑफ आवर माइंड, हमारे मन में ये होगा, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे माने, कभी दर्शन तो हुए नहीं. बट टुडे द सिस्टर had that experience. 10 to 11, when everybody was doing sadhana over here, one of the sister had that experience that whole time Guru Maharaj Ji was also in meditation. When Swamiji asked to do the techniques, Guru Maharaj Ji did the techniques with us. And when Swamiji said, last 2 minutes, the sister had that experience. She saw Maharaj Ji with a smile and then Maharaj Ji disappeared. इससे बड़ी गुरु की कृपा और क्या हो सकती है. महाराज जी हमें ये बार बार समझा रहे हैं, बार बार महाराज जी हमें ये इस चीज का एहसास दिला रहे हैं कि आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू. बट हमारी तरफ से इन रिटर्न व्हाट इज महाराज जी आस्किंग, कि आप अपने हृदय को प्योर करके यहां आए और मेरी कृपा को लूट कर ले जाओ. ही इज आस्किंग अ प्योर हार्ट ऑफ हिज डिसाइपल. महाराज जी ये नहीं कहते आई नीड योर मनी, महाराज जी कहते आई नीड योर प्योर हार्ट, जिसको मैं अपनी कृपा से भर दूं. So, dear brothers and sisters, not taking much of your time, today's tip is, do not make that one mistake. जीवन में बहुत सी गलतियां होती हैं, नो डाउट. इट्स नॉट ओनली वन मिस्टेक. सारी जिंदगी में हमने कोई एक गलती थोड़ी की होगी. Every second we make mistakes. And then we say, oh Maharaj Ji, please forgive. आगे बढ़ते हैं. बट द मेजर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो जीवन में हमसे ना हो जाए, वो है कहीं भक्ति से छूट ना जाए. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. रावण, ही मेड अ mistake of lust. Duryodhan, he made a mistake of greed, mistake of jealousy. और what were the results? हमारे सामने हैं. So let's promise Guru Maharaj Ji कि Maharaj Ji, you're expecting a pure heart of your disciple. हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपकी उन उपेक्षाओं पर खरा उतर सकें. जो आप हमें बनाना चाहते हैं हम वो बन सकें. हमारा हृदय वो प्योर हृदय बन जाए जिस पर आप राज कर सको. I'm going to conclude my satsang with a small little example. One day, सृष्टि में एक invitation आई. The whole world got an invitation from the Lord. Could be imagination story, but I just want to share with you. Nature, animal, bird, सबके लिए this invitation कि प्रभु ने एक selection करनी है. He is gonna make a selection. He is gonna choose one person. Everybody got ready. सभी ने अपने बेस्ट कपड़े डाले
क्योंकि इनविटेशन कहाँ से आई थी? प्रभु के दरबार से। सभी ने सोचा अपना बेस्ट बनकर जाते हैं, ना जाने वो मौका हमें मिल जाए। प्रभु ने किसी एक को चूज करना है, मे बी दैट विल बी मी। सभी के मन में ऐसा ही होता। लेट्स से गुरु महाराज जी सेज आई एम गोना चूज वन, सभी के मन में होगा। हम अपने अपने आप को एनालाइज करने लगेंगे कि ओ मेरे में कुछ ऐसा क्या है कि महाराज जी मेरे को चूज कर लेंगे। ओ यस, मैंने उस समय ये किया था, वो किया था, महाराज जी मेरे को चूज करेंगे। मैं महाराज जी की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा हूँ, खरी उतर रही हूँ। आई एम डूइंग ऑल व्हाट गुरु महाराज जी इज आस्किंग मी। So many things will run in our mind because everybody will think I am the best. ऐसे ही संसार का जो चर अचर जल, कुछ भी पेड़ पौधे वनस्पति सभी चल पड़े। And when that time came, जब प्रभु अपने सिंहासन पर आके विराजमान हुए, तो एक फूल पड़ा था वहां, a flower. फ्लावर के साथ ही एक चीज पड़ी थी जिसे हम कहते हैं गोबर। तो फूल उस गोबर को बोलता है, अरे भैया थोड़ा पीछे हटो, बदबू आ रही है, मुझ में सुगंधी और तुझ में बदबू, प्लीज कहीं और जाके बैठ जाएं। आपकी बदबू के कारण कहीं मुझ में भी बदबू ना आने लग जाए और प्रभु मेरे को ना चुने, इसलिए प्लीज I cannot tolerate this foul smell. Please find another place. Flower asking the cow dung. गोबर को बोल रहा है। गोबर सोचता है बात तो सही है, देखो कितने बढ़िया बढ़िया ये चीजें आई हैं यहाँ पर, everyone has, कितने गुण है सबके पास, और look at me, मुझ में बदबू आ रही है। तो फ्लावर when God came and sat on his सिंहासन, तो फ्लावर सोचता है मुझसे बढ़िया क्या हो सकता है, because I spread fragrance everywhere. हो ना हो प्रभु तो मेरे को ही चुनेंगे। प्रभु ने उस फ्लावर की ओर देखा एंड फ्लावर को प्रभु ने क्या बोला? You are my one of the greatest angel. फ्लावर खुश हुआ कि अब मेरे को प्रभु चुन भी लेंगे, मेरे को एंजल तो बोल ही दिया है। तो फ्लावर और बढ़िया से होके बैठने लगा, ठीक है प्रभु, मुस्कुराने लगा। एंड डिवोटीज, व्हाट हैपेंड? प्रभु अपने सिंहासन से उठे और जो गोबर पड़ा था, गोबर उठाया और अपने मस्तिष्क पर तिलक कर लिया। Why? प्रभु ने किसे चुना? उस गोबर को चुन लिया। Why? Because गोबर, प्रभु कहते हैं मेरे को प्योर चाहिए, मेरे को छल कपट नहीं चाहिए। Through this small incident, what प्रभु is trying to explain us कि मेरे को प्योर हार्ट चाहिए उस गोबर की तरह, उसमें छल कपट नहीं था। और प्रभु ने उसको अपने मस्तिष्क का तिलक बना लिया। इसी तरह गुरु दरबार में दिस डजंट काउंट कि हमें कितने वर्ष हो गए, अमीर गरीब बड़ा छोटा, दीज थिंग्स डोंट काउंट। इफ ओनली काउंट इज प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ आवर बॉडी। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि इस मार्ग पर चलते हुए, while walking on this path of spirituality, make sure we do not make that one mistake. And with this, I'm going to conclude my satsang over here. बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की जय। बोलिए श्री आशुतोष भगवान की जय, साचे दरबार की जय। ताप सह सह के विषयां दा, Something's got me. ताप सह सह के विषयां दा, पापां दियां टेरियां लाइयां
ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਦਲ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ, ਦਲ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ, ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਨੇ। ਕਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮੋਤੀ ਲੁਟਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਜ਼ਰਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਣ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਜਿਹੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਤੀ ਲੁਟਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਣ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਜਿਹੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਮਨ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਮਨ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ, ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਧਰਮ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਮੂੰਹ ਵੱਢਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਕਮੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ। ਸੇਵਕ ਧਰਮ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਮੂੰਹ ਵੱਢਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਕਮੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂ, ਜੋ ਮਾਰਗ ਤੂੰ ਦਰਸਾਏ ਨੇ। ਕਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਹੋਂਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪਰ ਪਲ ਕਰਦਾ ਸਜਦੇ। ਮੂੜੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾ ਸਭ ਕਜਦੇ। ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਹੋਂਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਕਰਦਾ ਸਜਦੇ। ਮੂੜੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾ ਸਭ
कज दे शासन कर मेरी जिंदगी ते शासन कर मेरी जिंदगी ते तू मेरे लेख सवारे ने कालख मेरे काले कर्मा दी मिटी मेरे सतगुरु प्यारे ने कालख मेरे काले कर्मा दी मिटी मेरे सतगुरु प्यारे ने कालख मेरे काले कर्मा दी मिटी मेरे सतगुरु प्यारे ने कालख मेरे काले कर्मा दी मिटी मेरे सतगुरु प्यारे ने। बोलिए श्री आशुतोष भगवान की जय। साचे दरबार की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु प्रिय साधक भाई बहनों, अभी हमने बहुत ही सुंदर और प्यारे शब्दों में सुना कि गुरुदेव कैसे अपने शिष्य को उसके कर्म संस्कारों से मुक्त कर देते हैं। और जब एक भक्त को यह एहसास होता है तभी वह उसकी आत्मा धन्य हो उठती है। लेकिन एहसास होना अति आवश्यक है। हमारा एक विचार, एक शब्द और एक कर्म कैसे जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में लेकर जा सकता है, यह भी हमने श्रवण किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। विज्ञान ने शोध के द्वारा प्रमाणित किया है कि पृथ्वी पर घटने वाली प्रत्येक घटना, धरती पर होने वाली कोई भी क्रिया ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया बनती है। इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा। हम अपने ही जीवन के उदाहरण से समझते हैं। हम यहाँ गुरु दरबार में आते हैं, जयकारा लगाते हैं। जयकारा जब लगाया जाता है तो दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं। हम सभी जानते हैं कि दोनों हाथों को ऊपर उठाने का अर्थ क्या होता है। एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर कब उठाता है? जब वह आत्मसमर्पण करता है। आत्मसमर्पण करने की जो क्रिया है वो दोनों हाथ ऊपर उठाने की है। अब हम यहीं पर विचार करते हैं कि जब बार बार बोला जाता है सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, कभी कभी तो हम आवश्यक भी नहीं समझते हाथ ऊपर उठाना। लेकिन साधारणतः हम देखते हैं कि जब कोई गुनहगार होता है, कोई दोषी होता है, अगर वह अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण कर देता है तो उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है या कम हो जाती है। लेकिन हम आज जहाँ जिस दरबार में बैठे हैं, यह पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु का दरबार है। और यहाँ अगर हम अपनी मर्जी से दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आत्मसमर्पण करते हैं तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप, ताप व संताप क्षमा हो जाते हैं, धुल जाते हैं। अब से जब भी हम जयकारा लगाएं तो केवल हाथों को ऊपर उठाने की एक प्रतिक्रिया ना दें, बल्कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में एक विचार आए
कि प्रभु हम 6 दिन संसार के कार्य व्यवहार में रहते हैं, प्रत्येक रविवार को आपकी शरण में आए हैं प्रभु, और दोनों हाथ उठाते हुए एक भाव मन में लाएं कि प्रभु ना जाने इस संसार के कार्य व्यवहार करते हुए जाने अनजाने मुझसे कितने पाप, कितने गुनाह होते हैं। अब तेरी शरण में आया हूँ, मुझे माफ़ कर और मेरे जाने अनजाने किए हुए कर्मों को साफ कर।